نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس، ہفتے میں 2 کی بجائے 1 دن کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایکسپو سینٹر پر بغیر ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی خبر کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، ہفتے میں 2 کی بجائے 1 دن کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس کا مزید احوال جانتے ہیں، آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آزاد، بتائیے گا مزید کیا فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں اس وقت صوبے بھر میں جو کورونا کی صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ لی گئی۔ اس اجلاس میں 3 جو ہے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ اب جو ہے کاروباری سرگرمیاں صرف ایک روز یعنی اتوار کے روز بند رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کو اب جو ہے جمعہ اور ہفتہ 2 روز یعنی کاروبار کھلا رہے گا، پورا ہفتے میں 1 روز کی چھٹی ہوگی۔ اس حوالے سے کل سے جو ہے 6 سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 21 جون سے پرائمری کی کلاسز شروع کیے جائیں گے۔ اسکول میں حاضری جو ہے 50% رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایکسپو سینٹر میں جو ہے جعلی سرٹیفکیٹ کورونا کے جعلی ویکسین کے حوالے سے جاری کرنے کا وزیر اعلیٰ سندھ نے سختی سے نوٹس لیا ہے، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IGSM کو احکامات جاری کیے گئے، فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور کورونا ویکسین ہے اس کی شفافیت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سندھ سرکار نے کراچی سمیت صوبے بھر کے تاجروں کے لیے بڑا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کاروباری سرگرمیاں صرف جو ہے اتوار کے روز بند رہیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد آپ کا۔ سندھ میں 6 سے 8ویں تک کلاسز کل سے شروع ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کلاسز 50% حاضری کے ساتھ شروع کی جائیں گی۔ پرائمری کلاسز کا آغاز 21 جون سے کیا جائے گا۔ اسکولوں کے تمام عملے کو کورونا ویکسین لگانا لازمی ہوگا۔ سندھ میں 6 سے 8ویں تک کلاسز کل سے شروع ہوں گی۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کلاسز 50% حاضری کے ساتھ شروع کی جائیں گی۔ پرائمری کلاسز کا آغاز 21 جون سے کیا جائے گا، تاہم اسکولوں کے تمام عملے کو کورونا ویکسین لگانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں پر حکم امتناعی کالعدم قرار دے دیے۔ عدالت نے نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں پر حکم امتناعی کالعدم قرار دی ہے۔ عدالت نے نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے گجر اور اورنگی نالہ کیس میں نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں پر حکم امتناعی کالعدم قرار دی ہے اور نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بلال، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے گجر نالے اور اورنگی نالے سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ دوران سماعت فیصل صدیقی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نالوں کی جو چوڑائی ہے اس کا عمل تو کیا جا رہا ہے، لیکن متاثرین کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا، لہٰذا متاثرین کو معاوضہ دیا جائے اور ان کو متبادل رہائش فراہم کی جائے، جس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ یہ ایک زمانے میں جتنی بھی لیز کی گئیں، چاہے کچی آبادی کی جانب سے ہو، KDA کی جانب سے ہو، یہ تمام کی تمام جعلی لیز تھیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ تمام تر جعلی لیز ہیں اور اس بنیاد کے اوپر آپ کو کیسے معاوضہ دے دیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین بھی کمرے عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ان متاثرین کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہر متاثر کو 20,000 روپے ماہانہ 2 سال تک کے لیے کرائے کی مد میں دیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصل صدیقی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں حکم امتناعی برقرار رکھنے اور معاونین کو معاوضہ دینے سے متعلق استدعا کی گئی تھی، اور عدالت نے اورنگی نالہ اور گجر نالے پر آپریشن کو جاری رکھنے اور وہاں پر جو تعمیرات کی گئی تھی ان کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ کاروباری برادری کے لیے ایک اور مشکل، ٹیکس گوشواروں میں بزنس بینک اکاؤنٹ ظاہر کرنے کی شرط لگا دی گئی ہے۔ FBR کو بزنس بینک اکاؤنٹ چھپانے پر کارروائی کی تجویز دے دی گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے، نمائندہ 24 نیوز وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
जी वकास, क्या सजा मिल सकती है? जी बिल्कुल, जो कारोबारी बिरादरी है वो इस बजट में ये तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत उनकी मुश्किलात को कम करेगी और आइंदा बजट में उनके लिए आसानियां पैदा करेंगी, लेकिन अब जो आइंदा बजट आया है उसमें हुकूमत ने कारोबारी बिरादरी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं और कारोबारी बिरादरी के लिए ये शर्त रख दी गई है कि वो टैक्स गोशवारों में अपने बिजनेस अकाउंट को लाजमी तौर पर जाहिर करेंगे। FBR को बिजनेस अकाउंट छुपाने पर कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है और ये भी तजवीज़ किया गया है कि बिजनेस बैंक अकाउंट जाहिर न करने पर 1 साल की कैद और जुर्माना FBR लगा सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बिजनेस बैंक अकाउंट छुपाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और कारोबारी अखराजात बिजनेस बैंक अकाउंट जाहिर करने के पहले जो था इख्तियार वो वापस ले लिया गया है और अब टैक्स कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो कारोबारी अखराजात दीगर बैंक अकाउंट से रोक सकेगा। कारोबारी अफराद को 1 जुलाई से अब अपना बिजनेस अकाउंट लाजमी तौर पर अपने गोशवारों में डिक्लेयर कराना होगा। जी बहुत शुक्रिया वकास, आपने अपडेट किया। और बात करेंगे अब पंजाब के बजट की। तो पंजाब हुकूमत अपना तीसरा बजट आज पंजाब असेंबली में पेश करेगी। बजट दस्तावेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत आज अपना तीसरा बजट पंजाब असेंबली में पेश करने जा रही है। बजट दस्तावेज की कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और इस हवाले से आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा होगा। दस्तावेजात के मुताबिक ये बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है अली रामे। बजट में कौन कौन सी तजावीज़ मजीद पेश की गई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज तीसरा बजट पेश करने जा रही है जिसका हुजम 2653 अरब रुपए लगाया गया है और पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब परवेज़ इलाही आज इजलास की सदारत करेंगे जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमां बख्त इस इजलास में बाकायदा बजट स्पीच देंगे और उसमें बजट के खदोखाल बयान करेंगे। और इब्तदाई तौर पर जो 24 न्यूज़ के पास तफसीलात हैं और दस्तावेज़ात हैं बजट के हवाले से, उसमें हुकूमत पंजाब 560 अरब रुपये का डेवलपमेंट पैकेज वो देने जा रही जिसमें हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में डेवलपमेंट के लिए 100 खरब रुपये का बजट मुख्तस होगा, जबकि 3 साल के लिए 360 अरब रुपये का तखमीना वो भी इस बजट में बताया जाएगा। अब इस बजट में लाहौर के अरकान असम्बली को 10 अरब रुपये दिए जाएंगे, जबकि जनूबी पंजाब के 7 ज़िला को 5 अरब रुपये का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज वो एक अलग से दिया जाएगा सिर्फ हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए। और जहाँ तक सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% तनख्वाह जैसे वफाक ने किया वैसे ही पंजाब हुकूमत अपने बजट में करेगी, जबकि उससे पहले उन्होंने एक स्पेशल 25% अलाउंस वो अप्रूव किया था, लेकिन वो सिर्फ 7 लाख मुलाजमीन के लिए। और हाईवे डिपार्टमेंट और इसके साथ ही जो हाईवे के साथ प्रोफेशनल और मोटरवे के साथ जो कमर्शियल इमारतें हैं वहाँ पर टैक्स के हवाले से कलेक्शन जो है वो भी इस साल उसका आगाज़ किया जाएगा, जो कि पहले साल तजवीज़ ज़रूर थी लेकिन वो सर्वे मुकम्मल होने के बाद वो नहीं हो सका। अब इसके साथ ही जो डेवलपमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ जो हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अस्पतालों की तमीर के मनसूबे हैं, सरकारी स्कूलों की तमीर के मनसूबे, यूनिवर्सिटियों की तमीर के मनसूबे और हेल्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है हुकूमत पंजाब का वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसके लिए 80 अरब रुपये का बजट मुख्तस करने जा रही है और हेल्थ कार्ड हर शहरी को मिलेगा। ये बराह रास्त आवाम के साथ इस मनसूबे का तल्लुक और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी हुकूमत पंजाब की तरजीहात इस वक्त रवा माली साल की निस्बत 86% ज़ायद बताई जा रही हैं। और ये बजट इसमें कोई नया टैक्स नहीं होगा लेकिन टैक्स रिवाइज करके उसमें इजाफा किया जाएगा। 50 अरब रुपये का टैक्स रिलीफ, लेकिन उसमें 6 अरब का टैक्स रिलीफ वापस होगा कोविड-19 की वजह से। अब उसमें साथ ही जो मुख्तलिफ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि पहले 60% थे अब उनको 60% ही रखा जाएगा, जो 5% उनको 5% रखने की तजवीज़ है, जिसमें शादी हाल मार्कान, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह को एक्सक्लूसिव दी जाएगी। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का मजमूई हजम 13,000 अरब रुपए से जायद मुतवक्के है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में मजमूई तौर पर 20% इजाफे का ऐलान मुतवक्के है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का मजमूई हजम 13,000 अरब रुपए से जायद मुतवक्के है, जबकि सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में मजमूई तौर पर 20% इजाफे का ऐलान मुतवक्के है। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ सामने आई है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में मजमूई तौर पर 20% इजाफे का ऐलान मुतवक्के है।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई कानून साजी का फैसला किया गया है। बल्दियाती इदारों में नई कानून साजी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। 3 रुकनी कमेटी में सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मुर्तजा वहाब शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नई कानून साजी का फैसला किया गया है और इस हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी देखी गई। 23 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम अमवात रिपोर्ट हुई। 15 फरवरी के बाद एक दिन में केसेस भी सबसे कम रिकॉर्ड हुए। वायरस मजीद 34 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों में मजीद 1019 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5 रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना से 34 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 29,214 कोरोना टेस्ट किए गए। 1019 नए केसेस सामने आए और मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 3% से कम होकर 2.59% हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में कोरोना के बायस 15 अफराद लुकमा अजल बने। खैबर पख्तूनख्वा में 8, सिंध 6, आज़ाद कश्मीर 3 और इस्लामाबाद में 1 शख्स वफात पा गया, जबकि बलूचिस्तान में कोई कोरोना मरीज जाँ बहक नहीं हुआ। कराची एक्सपो सेंटर में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ हुआ है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमा जालसाजी की दफात लगाई गई है इस मुकदमे में और एक्सपो सेंटर में रात की शिफ्ट में 2000 में जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे सौलत जाफरी से। सौलत जाफरी, अब ये काम भी शुरू हो गया है, जाली सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के? हाँ जी बिल्कुल। एक्सपो सेंटर में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ हुआ था। एक्सपो सेंटर के सीवीसी इंचार्ज अनिला कुरैशी ने वाकई का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुकदमे में जालसाजी की दफात लगाई गई है। एक्सपो सेंटर में रात की शिफ्ट में 2000 में जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। शहरी बगैर वैक्सीनेशन के 2000 रुपए अदा करते थे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया करते थे। वाकई के मुकदमात में IT ऑपरेटर मोहम्मद असीम खान को जो है वो नामजद किया गया है, जबकि दीगर स्टाफ की भी जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। ताहम इस तमाम वाक़े के हवाले से मैं आपको बता चलूं कि मजीद जो है बहुत शुक्रिया आप सौलत, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किडनी हिल पार्क तजावुजात केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि आपको तमाम कब्जे खत्म करने का हुक्म दिया था, आपसे नहीं होता तो आपको जेल भेज देंगे। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, बिलाल अहमद से जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किडनी हिल पार्क केस की भी समाअत हुई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी ये रिपोर्ट थी कि किडनी हिल पार्क से तमाम तर तजावुजात का खात्मा हो गया है, लेकिन हमें मालूम चला है कि अब भी वहाँ पर तामीरात मौजूद हैं, जिस पर कमिश्नर कराची ने कहा कि एक मस्जिद और एक मज़ार अब भी वहाँ पर मौजूद है और अदालत ने पूछा कि उस मस्जिद और मज़ार को कौन चला रहा है। इस मौके पर सेक्रेटरी जो कि उस जामे मस्जिद के मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये कदीम तरीन मस्जिद है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि किडनी हिल पार्क के नक्शे में किसी भी किस्म की मस्जिद मौजूद नहीं थी और ये लीज शुदा मस्जिद नहीं है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मस्जिद नबवी की भी गैर कानूनी अराजी पर तोसी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है किसी भी मस्जिद की तोसी नहीं हो सकती। कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपसे तमाम तर तजावुजात का खात्मा नहीं होता तो हम इसी वक्त आप पर चार्ज फ्रेम करेंगे और आपको जेल भेज देंगे। अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी है कमिश्नर कराची को और उन्हें ये कहा है कि किडनी हिल पार्क से तमाम तर तजावुजात का खात्मा किया जाए। ठीक है, और 2 रोज बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद के नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची कश्मीर रोड से फौरी तजावुजात हटाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने KDA हुकाम को हुक्म दिया कि जितनी मशीनें चाहें लेकर जाएं और सब गिराएं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बिलाल से जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से भी। मामला है, इसकी भी समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने की है। दौरान समाअत KDA के जो DG है अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि KDA ऑफिसर क्लब जो है उसको गिरा दिया गया है। ताहम अदालत ने कहा कि कश्मीर रोड पर सिर्फ KDA क्लब ही नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर और भी दीगर तजावुजात हैं। आपको जितनी मशीनरी चाहिए और वो ले जाएं और वहाँ पर जितनी तामीरात हैं उनको गिराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इलाका है जिस इलाके के अंदर उनका बचपन गुजरा है और उन्होंने इन इलाकों के अंदर जो मैदान थे खेल के उनमें खेला है, लिहाजा वो चाहते हैं कि कश्मीर किया जाए और वहां पर दोबारा से
मैदान बनाए जाए और बच्चों के लिए खोला ना सिर्फ के लिए खिलाफ बल्कि इसके अलावा भी जितनी भी वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हैं वो तमाम की तमाम उनको खत्म करने का। ठीक है बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मार्गरा हिल्स में आग लगने के वाकयात पर वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट की तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में? मार्गरा हिल्स के इस वक्त हम टॉप पर मौजूद हैं और जो आग से जो मुतासरा इलाका है यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं और जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ की जो टीम है ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लगी हुई आग को जो है उसको काबू पाते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। कितने वाक़यात इस सीज़न में हो चुके हैं आग लगने के? इस सीज़न में तकरीबन जो जहाँ जहाँ हमारी पिक्चर लगी हैं वहाँ 4 से 5 वाक़यात हुए हैं। ओवरऑल तकरीबन 35-36 के राउंड 35-36। साथ ही रोड है, बिल्कुल रोड के ऊपर कुछ सिगरेट के हवाले से लग जाती है, चलते मोटरसाइकिल पे बाइक से गाड़ी से सिगरेट फेंके जाते हैं। तो आप लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो आप लोग मना करते हैं, बारबेक्यू लोग करते हैं? जी, बारबेक्यू के हवाले से भी होती है। ये आग आप बुझाते क्या हैं, किस तरह है, क्या आलात क्या हैं आपके पास? सर ये इसको क्या बोलते हैं? ये इसको सनथा बोलते हैं, सनथा है। और इस तरह के जो पौधे झाड़ीदार होते हैं उनसे हम टहनियाँ तोड़कर इससे आसानी से आग बुझ सकती है। अच्छा कदीर भाई, ये बताएं कि किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए आप लोगों के लिए ये फायर फाइटिंग के हवाले से? एक फायर पंप होता है, फायर पंप उसको कहते हैं। वो पानी उसके अंदर डालकर तो जहाँ आग ज़्यादा होती है या आग इंसान के जलने का खतरा होता है वहाँ पे वो फायर पंप से जो है वो। इस तरह के कितने दरख्त हैं जो कि जले हुए हैं? इस तरह के काफ़ी तादाद में दरख्त जल चुके हैं, काफ़ी तादाद में। ये इधर देख लें, उस तरफ भी हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जानवर परिंदे आप लोग जब आग बुझाते हैं तो क्या वो भी मुतासिर होते हैं? कभी उनको भी देखा है कि कोई? बहुत दफ़ा देखा है सर के आग लगी होती है और कई दफ़ा परिंदा उड़ता है, वो अंडों या बच्चों की खातिर वो आता है नीचे, फिर आता है और आग में झुलस जाता है। सबसे एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा जब यहाँ पर नेशनल पार्क में आए तो गंदगी कचरा ना फेंकें। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सऊदी अरब जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। गैर मुल्की मुसाफिर सऊदी अरब आमद से कबल हिफाजती टीकों की रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एयरलाइंस मुसाफिरों की वैक्सीनेशन से मुतालिक डेटा वेबसाइट पर दर्ज लाजमी यकीनी बनाएं। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक 16 जून से होगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो